अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पत्रयोदस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, welcome everyone to the evening session of the Vaishnava Etiquettes written by His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. Yesterday we read the first two chapters and learned a lot of points. Today we'll be reading the third chapter entitled Basic Principles of Vaishnava Behavior. Vaishnava etiquettes are not superficial or unessential. Having heard of all these details, Sri Chaitanya Mahaprabhu greatly pleased spoke as follows. तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हय sadhura bhushana. My dear Sanatan, although you are the deliverer of the entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, it is the characteristics of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquettes. Maintenance of the Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. So it is stated, etiquette is the ornament of a Vaishnava. But what does this mean? Is etiquette something only external or optional? We could draw an analogy. Is it possible to be wealthy but we have no riches? Or what is the value of wealth if one uses no costly ornaments? Generally, one will decorate himself according to the degree of his wealth. If one is very rich, he'll be adorned with only the finest of raiments and accessories. Similarly, for one who is profound in his Krishna consciousness, the jewels of Vaishnava etiquette will naturally grace all of his dealings and activities. The characteristics of a devotee are always sublimely manifest in all of his actions. The depth of the Vaishnava is judged by his symptoms. The true devotee will therefore adorn himself separately with the decorum of the Vaishnava in all respects. Etiquette dictionary definition. Conventional requirements as to social behavior. The code of ethics of a profession. Accepting the identity of a Vaishnava necessitates a certain standard of behavior or etiquette. Vaishnava etiquette facilitates Krishna consciousness. It provides the criteria, the protocol by which a devotee can act properly in every situation. In the Bhagavad Gita 6.24 purport, quoting with verse 3 of the Upadeshamrit, Srila Prabhupada roughly paraphrases one of the items favorable for development of devotion service, as by engaging completely in activities of goodness, practicing Vaishnava etiquette means always acting in the mode of goodness, which is the stepping stone of the transcendental plane. The mode of goodness is conducive to self-realization, whereas ignorance and passion are not. Therefore, how one applies the principles of Vaishnava etiquette reflects whether a devotee is Krishna conscious or not. That is he humble, conscious, well mannered, disciplined?
cultured, sensitive. Someone who is actually a devotee will be known by how much he displays the good qualities. Quotes from Srila Prabhupada. A Vaishnava is better than a Brahmana. Brahmanical life means cleanliness. Brahmanical life means to be very, very clean inside and outside. Inside by chanting and hearing, and outside by bathing 3 times daily. If not possible, at least 2 times, but never less than once. Bathing after passing stool. The qualification of the Brahmana are described in the 18th chapter of Bhagavad Gita, verse 42. Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge, and religiousness. These are the qualities by which the Brahmanas work. So see that these instructions are being followed nicely. Srila Prabhupada letter to Shivram, December 7, 1975. शुभम प्रभु आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. Yes, Prabhu. Not associating with materialistic persons, Rameshwara, in regard to Vrindavasi. They claim that our lifestyle tends to take the devotee and isolate him from the world. Yes, said Prabhupada. We had to mix with you. No gentleman tries to mix with loafers. Crows will not like to live with the ducks and white swans, and crows will not like to live with the ducks and white swans, and white swans will not like to live with the crows. That is natural division. Words of the same feather flock together. Leela volume 6.222. The feet. हरे कृष्ण प्रभु जी. The feet. हरे कृष्णा. आप लोग शुरू कर चुके हैं? आप बस अभी भी शुरू किया प्रभु जी. प्रभु जी एक्चुअली कल जब हम अकेले पढ़ रहे थे तो कुछ डाउट्स आए थे और कुछ चीजें हम थोड़ा क्लैरिटी में जानना चाहते थे, तो अगर आप जब भी समय देंगे. अच्छा, बस 5 मिनट आप लोग शुरू करिए रीडिंग. 5 मिनट चेंज कर लेता हूँ उसके बाद में. मैं जो सभी आरती से आया हूँ. जी जी प्रभु जी. जी प्रभु जी. The feet should not touch or even be exposed to anyone or anything, especially sacred items. That is offensive. Basically, the feet touch only the floor, otherwise they are kept covered. One should not step over or reach over anyone. A. While they are offering obeisances, example, before the Vyasasana. While they are sitting, as in the temple room. Slamming doors. The slamming of doors, although seemingly a minor fault, greatly disturbed Srila Prabhupada. It symptomized carelessness and misuse. And Prabhupada said the sound cracked his heart. One time Prabhupada came out of his room and called out, "Who's that slamming the door? No one knows from where this building has come. You take it for granted that it is here, but no one cares." Stealing. But so far as stealing is concerned, one should not steal except in the rarest circumstances. Moral principle is recommended in all scriptures as a prerequisite for spiritual culture. 4. More on the behavior of the Vaishnava. It is a characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of Vaishnava etiquette is the ornament of a devotee. First, the consciousness of a devotee is manifested by his actions. Second, if one has any depth of realization, the jewels of Vaishnava behavior will naturally face all of his feelings and activities. Third, we need to be aware that the vast majority of our exchanges are with devotees and the innocent public. Aparadha is the only real stumbling block in spiritual life. We must become fearful of committing offense. This awareness will lend sovereignty and gravity to our behavior. We will naturally become humble. Sri Chaitanya Mahaprabhu will become pleased, and we will make advancements without serious obstruction. 4. Srila Prabhupada's reputation depends on our behavior. In this
In his compassion, he lifted us from very degraded backgrounds. He was even criticized by the less intelligent in India for doing so. In order to maintain Cyril Prabhupada's good name, our behavior should be very exemplary. Quote from Cyril Prabhupada: act in such a way that they will see we are of ideal character. When asked, how do you recognize a Vaishnava? Cyril Prabhupada replied, he is perfect gentleman. आपने आचार्य कहे न करे प्रचार, प्रचार करे न कहे न करे न आचार. Some behave very well but do not preach the cult of Krishna consciousness, whereas others preach but do not behave properly. आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य. You simultaneously perform both activities in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching. Therefore, you are the most advanced devotee in the world. Better than the Brahmana who knows the purpose of the Vedas is he who can dissipate all doubts, and better than him is one who strictly follows Brahmanical principles. Better than him is one who is liberated from all material contamination, and better than him is a pure devotee who executes devotional service without expectation of reward. Now I want that we shall concentrate on making our devotees Krishna conscious and ourselves becoming Krishna conscious, and not be so much concerned with expanding ourselves widely, but without any special content. Just like boiling the milk, it becomes thicker and sweeter. Now, do like that, boil the milk. A devotee is always ideal in behavior, so we all have to cooperate amongst ourselves. Otherwise, what will people think if we ourselves fight with one another? A devotee is always ideal in behavior. The Vaishnava symptom is humility. Your humble repentance is just like a Vaishnava student. So I thank you very much for this humbleness. Lord Chaitanya taught us to be humbler than the grass on the street and more tolerant than the tree. So these symptoms are Vaishnava symptoms. Krishna is so very merciful to those who are very humble in their attitude, engaged in service of the Lord. Lord Chaitanya advised, therefore, one should be humbler than the straw and more tolerant than the tree, and thus be seriously engaged in glorifying the Lord. This world is very awful. Anyone is ready to create some disturbance, especially they are very much apt to disturb Krishna consciousness persons, because that is the way of demonic life. So in order to protect us from all dangerous elements, we have to chant the Hare Krishna mantra regularly, being humbler than the straw and more tolerant than the tree. Then Krishna, who is Deen Dayal, will bestow his mercy upon us. You are good for everything, but your attitude to remain good for nothing is very nice. A Vaishnava is always humble and meek, and he is never puffed up, even he has got the highest qualities of demigod. So we have to be very careful in understanding Krishna consciousness. To understand Krishna as he is spoken in the Bhagavad Gita or in other Vedic literature through the right sources of disciplic succession, that is our real knowledge. The idea is everyone should try to pace himself as if he doesn't know anything. His position is secure, but as soon as he says that I know everything and I was previously such and such, that is actually rascal. So I know that you are trying to know things from the real source, and you are not puffed up like other fools who think that they know everything. Your humbleness is very much appreciated by me. As I have already said many times that we have to maintain two lines parallel.
namely the path of Srimad Bhagavatam and the path of as I have already said many times that we have to maintain two lines parallel, namely the path of Srimad Bhagavatam and the path of Pancharatriki. Srimad Bhagavatam is the path for Paramhans and Pancharatra path is for the neophytes. So the temple worship is necessary for the beginner, so that by following the regulative principles, such devotees become more and more purified and thus gradually come on the platform to understand Srimad Bhagavatam. So we shall always keep these principles in view and maintain our centers on this standard. Recently, I have received one Kalyan magazine in which our activities in the Western world have been very much appreciated. Especially, they have appreciated my strong injunctions on the point of following the 4 prohibitive regulations. So after describing our activities, the editor has remarked in one place that things are going very nicely at present, but it is God only who knows how it will continue in the future. This means that the Indians or the rigid followers of Vedic principles are doubtful about my American and European students about their sticking to these principles. So it is a God sent warning for us so that we may not deviate from the above mentioned 2 lines of action and thus become subject to criticism by the opposing elements. Our dealings with others must be clear. Hare Krishna. हरे कृष्णा। जी जी प्रभु, तुकाराम प्रभु जी थोड़ा फ्री हो गए हैं, मतलब वो हाँ हरे आ गए कृष्णा। हैं रिटर्न। हाँ बताइए आप लोग क्या पूछ रहे थे? हरे कृष्ण। इसमें से कुछ कुछ जानना था प्रभु जी। बताइए कौन सा? प्रभु जी सबसे पहले तो हिमांशु प्रभु का डाउट है कि ये जो यहाँ पे लिखा है कि चिकपीस रात को नहीं खाते हैं, मतलब प्रभु जी चिकपीस का मतलब क्या बताया था? छोले। अच्छा। क्या लिखा है? डू नॉट ईट योगर्ट और चिकपी फ्लोर एट नाइट। ठीक है, एक्चुअली श्रील प्रभु इंस्ट्रक्ट अस अबाउट योगर्ट, बट वी आर नॉट सो श्योर अबाउट चिकपीस, सो यू बी केयरफुल अबाउट दैट नाउ। ओके, एक्चुअली देखिए ये जब सिद्धांत इस तरह आता है ना, तो ये कोई वैष्णविज्म का इटरनल प्रिंसिपल नहीं है, ये जस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए से रात को दही खाने से मम्मी मना करती है कि नहीं जी। सबके घरों में दही मत खाओ, क्योंकि वो आयुर्वेदिक के हिसाब से जुकाम पकड़ लेता है। चिकपीस एक्चुअली जो थोड़ा हैवी होता है, तो अभी रात को खाओगे तो आपको हैवीनेस लगेगा, हैवी चीज होगी, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो सुबह पेट खराब होगा, या कॉन्स्टिपेशन लग सकता है, या हो सकता है पेट अनडाइजेस्टेड रह जाए वो, और पेट अगर तो हैवी रह जाता है तो वो जेनिटल्स के ऊपर भी प्रेशर डालता है, जिस कारण से सीमेन लूज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ डाइटरी रेगुलेशंस आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो आप ये देखिए घर के बड़े बुजुर्ग लोग इस तरह हम पहले से देखते आ रहे हैं, इस तरह वो करते हैं कि ये, पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं बोल सकते, मतलब जैसे मीट ईटिंग नहीं करना है, ठीक है, तो वो किसी भी अवस्था में नहीं करना है। अब लेकिन मान लीजिए कुछ खाने के नहीं और चिकपीस बना हुआ है कहीं पे और हम लोग उस प्रोग्राम में हैं, तो वो उस समय खाया जा सकता है, समझ रहे हैं? मतलब एज सच इट मस्ट नॉट बी द हैबिट अदरवाइज, लेकिन ये ओकेशनली कभी कभी अगर होता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब ये कोई वैष्णव सिद्धांत नहीं है, जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में 5वां रेगुलेटरी प्रिंसिपल ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये समय काल परिस्थिति के अनुसार समझे? जी प्रभु जी इसमें अभी जो वर्ड आया था पंचरात्रि की, एक तरीके से इसका क्या प्रोसेस है प्रभु जी इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पहले एक और पॉइंट पहले वाला क्लियर करता हूँ। देखिए जैसे
आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक अंडरस्टैंडिंग। अरे बोल, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी। बिल्कुल आ रही है ठीक गुरुजी। है, ये फोन आ गया था बीच में। तो आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग और एलोपैथिक जो मॉडर्न मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग, उसमें एक अंतर बता रहा हूँ मैं। आप लोग सब जानते हैं, जस्ट इसको एक पॉइंट। जैसे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, विधि निषेध होते हैं कि ये सब मेडिसिन लेते समय ये सब डाइट कंट्रोल करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। जैसे हम लोग चातुर्मास फॉलो करते हैं, तो उसमें पहले चातुर्मास में हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते। नेचुरली बारिश के सीजन में उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हम एक्सेस नहीं कर मतलब जांच नहीं पाएंगे, है ना, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो और इस तरीके से आयुर्वेद बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन देता है। मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलती है, कुछ भी हो दवाई खा लो, बात खत्म। मतलब कोई डाइट कंट्रोल करना जरूरत नहीं, कोई कुछ करना जरूरत नहीं है, केवल बस जो इच्छा करे वो खा जाओ, इस तरह वो लोग बोलते हैं। हम लोग की पैदाइश और जो हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोग उसी क्या कहते हैं फेज में बड़े हुए हैं, जिस फेज में ये बहुत मॉडर्न साइंस का बोलबाला है। हम बहुत कुछ फॉलो नहीं करते हैं एज सच, है ना। हालांकि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद धीरे धीरे कल्चर ऐसा है कि आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती है। जैसे हम लोग कॉलेज में हमारा लाइफस्टाइल होता था, रात को जागना और सुबह सोना, निशाचर, जो निशा में चरण करते हैं। निशाचर का अर्थ क्या होता है, जो रात में जागते हैं, है ना। तो वो हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन हमको कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद जो सिद्धांत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो हमको सिखाया जाता है, उसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो तात्पर्य ये कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि आपका फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, तीनों, सब कुछ ऑल इंक्लूसिव, है ना। तो मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न मेडिसिन में तुम कुछ भी खाओ, किसी भी समय सो जागो, कोई फर्क नहीं, कोई स्लीप साइकिल की जरूरत नहीं, कोई नेचर का कोई लॉ फॉलो करना जरूरत नहीं है ना। ये काफी अनहेल्दी है। कूल लाइफस्टाइल वास्तव में काफी अनहेल्दी है, ये हम सब जानते हैं, और इसका लॉन्ग रन में असर दिखता है। इसलिए हम देखते हैं जो लोग आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या जो लोग प्रॉपर तरीके से वैदिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उन लोग का वो लोग काफी ब्राइट होते हैं, और काफी हेल्दी होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, और भी बहुत सारे पॉजिटिविटी हम देखने को मिलती है उनके अंदर, है ना। और जो लोग केवल मॉडर्न मेडिसिन के फॉलोअर्स होते हैं, वो कुछ भी वो मेडिसिन खा लो, तो इस तरीके से धीरे धीरे उनका लीवर खराब होता है और भी सब कुछ होता है, और उतने ब्राइट नहीं होते वो लोग बाय डिफॉल्ट। तो ये सब जो दिखा हुआ है, जैसे योगर्ट नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रिस्क्रिप्शन है। हेल्दी रहेंगे तो माइंड अच्छा रहेगा, तो भजन अच्छे से कर पाएंगे। पर ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसको ये नहीं कह सकते दिस इज रेगुलेटिव प्रिंसिपल, है ना। मैं एक और एग्जांपल देकर के आप लोग जानते हैं इस पॉइंट को। जैसे मान लीजिए आयुर्वेद के अनुसार और वैदिक कल्चर के अनुसार और कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल के अनुसार सीमेन लूज नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो लेकिन मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन मॉडर्न साइंस बोलते नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा एनकरेज करते, वो कहते नहीं इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है ना। और आप लोग का सबका अनुभव होगा, ये प्रैक्टिकली सबने देखा, मतलब सबने अनुभव किया है। हर व्यक्ति इंटरनेट में सर्च करता है इज इट रियली हेल्दी और नॉट क्योंकि उसके हृदय में बैठ के परमात्मा बोल रहे इट इज नॉट गुड, लेकिन उसका माइंड बोला इट इज गुड, और मॉडर्न साइंस से वो कंपेयर करता है। फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल देते नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर्स बोलते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, साइंस बोलता है कोई बुराई नहीं है। जबकि हम लोग बेनिफिट जानते हैं कि कितनी फायदे हैं ब्रह्मचर्य के पालन करने के, कितने नुकसान है सीमेन को लूज करने के। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं और हम जानते हैं। और आजकल एक मूवमेंट चला है, अगर आप लोग जानते होंगे, अमंग यंगस्टर्स एक मूवमेंट चला है, उसका नाम है नो फैप मूवमेंट। सुना है आप लोगों ने? ये नाम सुना है आपने? हाँ, नो प्रभु जी। नहीं सुना? आप कौन से जमाने, कौन से सदी में जी रहे हैं इसको कहते हैं नो फैप मूवमेंट, सुने हैं प्रभु जी। है ना। तो क्यों ये मूवमेंट अभी चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो आगे आ रहे हैं और इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल या वैदिक लाइफस्टाइल में इसको प्रमोट किया जाता है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना। मॉडर्न लाइफस्टाइल में कोई जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, फिजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो व्यक्ति
ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन करता है वो हेल्दी रहता है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, वो बीमार बहुत जल्दी नहीं पड़ता है, और जैसे उसके उसके चेहरे में एक अलग से एफल्जेंस रहता है, देखने में मिलता है, आप देख सकते हैं, हम देखते हैं डिवोटीज, अपने गुरु महाराज को देखा, भक्ति चारू महाराज को, इतनी एज में लेकिन कैसे एफल्जेंट लगते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल फॉलो करी है। तो मॉडर्न साइंस कुछ भी बोले, हमको वैदिक साइंस के ऊपर या वैदिक कल्चर के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और उसको हमको प्रैक्टिस करने का हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए। तो भक्ति तो बहुत ऊपर का स्तर है, ये बेसिक मनुष्य ठीक जीवन जिए, उसके लिए भी अभी आप देखिए, मैं कुछ समय पहले देख रहा था, कोई बहुत एक एजेड व्यक्ति थे, लगभग उसकी उम्र 120 साल के आसपास गई, तो उसके उसमें लिखा है, मैं बहुत 6-7 महीने साल भर पहले मैं देखा होगा, तो उसने बोला कि मेरे लंबी उम्र का राज है, एक तो हेल्दी और नॉन स्पाइसी भोजन, मतलब सात्विक भोजन, और ठीक तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो हम देख सकते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स आर नेचुरली वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, तो दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड एंड अप, मतलब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। और कई बार कुछ लोगों की इतनी हैबिट बन जाती है कि उनको उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों निकलना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि दैट इज डेट्रीमेंटल टू देयर फिजिकल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी एंड स्पिरिचुअली। तो खैर फोकस नहीं कर सकता व्यक्ति, जो व्यक्ति सीमेन कंट्रोल नहीं कर सकता है वो व्यक्ति फोकस्ड नहीं रहता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमारे गुरु महाराज बताते हैं। जैसे मान लीजिए दूध होता है, तो दूध का जो एसेंस है वो कहाँ है? घी में, है ना। तो दूध के अंदर जब दूध को मथ देते हैं तो उसका जो एसेंस है वो घी निकल जाता है। बिना घी के दूध मतलब बिना फैट के मिल्क मतलब टोन्ड मिल्क, कुछ भी नहीं है, पानी है वो। तो इस तरीके से मनुष्य की बॉडी का जो एसेंस होता है वो उसके वीर्य में, सीमेन में होता है, और जब उसको एजिटेट करके निकाल दिया जाता है तो क्या होता है? अब वो कुछ भी नहीं बचा, मतलब वो अब जो उसकी जो वाइटल एनर्जी है वो लूज हो गई। तो जो एनर्जी वेपराइज होकर के ब्रेन सेल्स को नरिश करती और इंटेलिजेंस को नरिश करती थी, वो तो ड्रेन आउट हो गई। तो ये एक्चुअली साइंटिफिक है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न साइंस एनकरेज करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर मॉडर्न साइंस बोलने लगे नहीं नहीं ये बुरा है, तो लोग कौन उनके को फॉलो करेगा? वो ऐसी बातें ही बोलेंगे जो चीज लोगों को सुनने में अच्छा लगा। किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो 4 प्रकार के ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इस तरह बताएगा, तो कौन उसको अप्रिशिएट करेगा? किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो बोले सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ भी दवाई ले लेना, तो हमको ऐसे डॉक्टर पसंद आता है जनरली। तो ऐसे 2 वर्ड बताएं, श्रेया और प्रेया। हमको जनरली प्रियकर वस्तु पसंद आती है, सबको साथ होता है, और श्रेयस्कर वस्तुओं को पसंद नहीं आती। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफस्टाइल में, ये वैदिक लाइफस्टाइल में, वैष्णव एटिकेट जो बुक में आप पढ़ रहे हैं, वो पहले एक हेल्दी और एक स्टेबल लाइफस्टाइल जिए। भक्ति तो बहुत बाद में आएगा, समझ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे को कुछ बच्चे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, मुझे कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि उनको इनसोमिया इशू हो गया है। इनसोमिया मतलब नींद नहीं आती। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, बिल्कुल नींद नहीं आती थी, और उस कारण से मेरे सारे पेपर बिगड़े, क्योंकि फोकस ही नहीं कर सकते थे। आपको अच्छी नींद ही नहीं आती, तो नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। नींद क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि आप हमारा जो नेचुरल साइकिल है वो बिगड़ गया। नेचुरल साइकिल है कि सूर्य अस्त होने के साथ व्यक्ति को धीरे धीरे सो जाना चाहिए और सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। अब सूर्यास्त होने के बाद वो उठता है और सूर्य उदय होने के बाद वो सो जाता है। तो उसका क्योंकि साइकिल इस तरह बिगड़ गया है, तो फिर लॉन्ग रन में उसको इंसोमिया हो जाता है, नींद नहीं आती प्रॉपर टाइम, उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्योंकि नींद नींद उसे बोलते हैं, प्रोपात बोलते हैं, स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। तो क्योंकि अब प्रॉपर स्लीप नहीं है तो बॉडी वीक हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहा है, इमोशन चिड़चिड़ापन लग रहा है, उसके बाद रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। तो देखिए नेचर के साइकिल से चलना कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें हम लोग को या तो घर में भी नहीं सिखाई जाती है, ना कॉलेज में सिखाई जाती है, ना हॉस्टल में सिखाई जाती है। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद कम से कम भक्तों के साथ में रह करके ये चीज हम मिनिमम फॉलो करने लग जाते हैं। यस और नो? मैं अनुभव कर रहा हूँ, जब जितना सुबह जल्दी उठेंगे उतना आपको फ्रेशनेस लगेगा और आपको वाइब्रेंट लगेगा। ये फैक्ट है। हमेशा एनर्जेटिक लगेगा, ब्लिसफुल लगेगा, आप हैप्पी होंगे, हैप्पी माइंडसेट के साथ आप कुछ काम कर सकेंगे। तो ये सारे जो प्रिंसिपल दिखे ना, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ जितने प्रिंसिपल्स दिखे हुए हैं, है ना, तो ये सारे प्रिंसिपल वैष्णव के प्रिंसिपल नहीं है। ये सारे प्रिंसिपल एक मनुष्य के प्रिंसिपल है, मतलब एक आदमी को ये मिनिमम फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हैं?
मनुष्य बनने के लिए ये मिनिमम फॉलो है, इसके बिना तो पशु है। एक्चुअली पशु भी आप देखिए सुबह जल्दी उठ सूर्योदय के साथ उठ जाते हैं सारे पशु और पक्षी, और यहाँ तक कि नहाते हैं। मनुष्य तो 3-3 दिन हॉस्टल में नहीं नहाता है, लेकिन आप देखिए सारे पक्षी वो मड बात लेते हैं। आपने कभी देखा होगा पेड़ों के ऊपर घोंसले होते हैं, और पक्षी सुबह सुबह, अब वृंदावन में जरूर देख सकते हैं, पेड़ों किससे वो नीचे उतर आते हैं, और नीचे उतरने के बाद वो मड में स्नान करते हैं। देखा आप लोगों ने, अनुभव किया कभी, नोट किया किसी ने, है ना? कुत्ता भी स्नान करता है सुबह सुबह जाकर के, भले अपने स्टाइल में स्नान करे लेकिन मनुष्य बोलता सर्दी है तो नहीं नहाता है तो बताइए कौन बेटर है? हम मनुष्य बोलते हैं हम बेटर है, एडवांस है, लेकिन वास्तव में कौन एडवांस है? हाँ, कभी आपने सुना कि कुत्ता इलिसिट सेक्स करता है? कभी सुना है कुत्ते ने किसी का रेप किया? कभी नहीं सुनेंगे तो मनुष्य से कई गुने अच्छे जानवर है वास्तव में देखे जाए तो। ये सारे प्रिंसिपल यहाँ लिखे हुए हैं, दैट इज नॉट दैट दे आर नॉट वैष्णव प्रिंसिपल्स। अब उसमें लिखा है ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, एक वैष्णव को सिखाने की बात है नेवर स्टील एनीथिंग, चोरी मत करो नेवर यूज अनप्लेजेंट वर्ड्स ये सब गेट अप बिफोर 4 AM एंड अटेंड मंगल आरती, तो मतलब ये बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड कि 4 बजे से पहले उठना चाहिए। तो मतलब ये बिल्कुल मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये मनुष्य का स्टैंडर्ड है, इसके बिना तो पशु है। हाथ धोना चाहिए पैर धोना चाहिए, ये कोई सिखाने की बात है? फ्रेश होने के बाद नहाना चाहिए। प्रसाद लेने से पहले क्यों पैर धोना चाहिए, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। प्रसाद देने से पहले क्यों? प्रसादम को हम सर्विस कर रहे हैं, प्रसादम सर्विस कहते हैं उसको, सर्विस समझते हैं जैसे हम ऑल्टर में सेवा करते हैं, तो जैसे प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो हाथ पे धोने से इसको ऑनर करते हैं। ये तो हुआ एक वैष्णव रीजन, एक उसका टेक्निकल रीजन। साइंटिफिक रीजन ये है कि पैर धोने से, हाथ धोने से, मुंह धोने से आपको फ्रेशनेस लगती है। फ्रेशनेस लगने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है। ये बहुत छोटा प्रिंसिपल है। हाँ, हाथ धोते हैं केवल जर्म्स के लिए, वो एक कारण है, लेकिन फ्रेशनेस लगती है हाथ पैर। कभी कभी देखिए अगर हाथ पैर धो लेते हैं तो कितना फ्रेश फील होता है। पूरा आप स्नान नहीं किया, लेकिन केवल हाथ मुंह और पैर धो लिया, कैसा लगता है? घर में आप घुसते हैं, जैसे आप कहीं बाहर से गए तो मम्मी क्या बोलती है सबसे पहले खाना खाने से पहले? हाथ मुंह धो गया हो। हाथ मुंह धो के आओ, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप पैर भी धो के आते हैं, बुद्धिमान है तो जी है कि नहीं? ये करते कि नहीं करते? ये नेचुरल लाइफस्टाइल है। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में जूता पहन करके खाना खा लेते हैं, वो बफे सिस्टम में वो बफेलो की तरह खड़े होकर के खाते हैं ये सब वैष्णव स्टाइल नहीं है, ये पशु स्टाइल है। पशु खड़े होके खाता है आइडियली एक इंसान तो बैठ करके ऑनर करता है, तरीके से खाता है। एक बात का जवाब दीजिए, आदमी कमाता क्यों है? 2 रोटी के लिए, रोटी कपड़ा नहीं, मकान। 2 रोटी के लिए नहीं, रोटी तो अच्छे से खाता है आदमी कमाता इसलिए है क्योंकि उसको अच्छा खाना खाना और अच्छी नींद लेना है, सुख से जीना है। अब बेचारा कमाने के चक्कर में ना अच्छा खा पाता है, इतना बिजी है कि ना खा पा रहा है, और इतना उसका व्यस्त है कि वो सो भी नहीं पा रहा है। तो जिस चीज के लिए वो कर रहा है वो तो कर ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या सुख का अनुभव करेगा? जो भाई सुख कहाँ है? अच्छा भोजन करने में सुख है, अच्छी नींद लेने में सुख है। सुख के बेसिक साधन तो हटा दिए और इल्यूजरी सुख में जी रहे हैं। तो अच्छे से भोजन कर सको इसलिए हाथ पैर मुंह धो करके बैठ के भोजन करो, बढ़िया प्रेम से माँ प्रसाद गोविंदे करके अच्छे से खाओ, चैन से खाओ, समय लगा खाओ, एक ही चीज को ऑनर करके खाओ, कितना अच्छा लगेगा, नहीं? कितना अच्छा लगेगा। तो ये सब मनुष्य के पीसफुल गुडनेस में रहने वाले ये हैं तरीके हैं, ताकि गुडनेस में रहे व्यक्ति। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका माइंड बहुत एजिटेटेड है, आप जो खा रहे हैं आप रिलेश नहीं कर पा रहे, आपके सामने रसगुल्ला रखा है लेकिन आप बहुत बिजी हो, तो बिजीनेस में आप, या तो आपका माइंड इतना पैशनेट है, आपको ध्यान कहीं और है। एग्जाम के 1 दिन पहले, एग्जाम के प्रीवियस रात को आपको कुछ भी खिला दो, आपको कोई पता नहीं चलता, होता है कि नहीं? आप रिलेश नहीं कर पाए क्योंकि आपका माइंड कहीं और है। तो वैदिक प्रिंसिपल कहते हैं नहीं, आराम से चैन से खाओ, बैठ करके प्रेम से खाओ, शांति से सुख से जियो, सुख से जी लो वो गाने गाते हैं वो लोग, क्या है, जिंदगी के 4 दिन बाकी क्या बाकी है ये वो, बेकार में। हाँ जो भी है। तो वो लेकिन वो केवल गाते हैं, वैसे जीते नहीं है आज सुना किसने सुसाइड किया? अच्छा नागालैंड के पूर्व राज्यपाल ने सुसाइड कर लिया। राज्यपाल होकर, मतलब राज्यपाल था, सुसाइड कर लिया। क्या पड़ी थी सुसाइड करने की? मतलब सुखी नहीं है,
तो सारा प्रयास चल रहा है सुख के लिए, लेकिन सुख नहीं है ये। दूसरी बात, ये जो बाहर के लोग बोलते सुख मिलेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा, ये बिल्कुल बोगस फंडामेंटल। इफ यू आर नॉट हैप्पी नाउ, यू विल नेवर बी हैप्पी। बस ये प्रिंसिपल्स सिखाए जा रहे हैं हमको। ये तो खैर मनुष्य बनने के प्रिंसिपल है, वैष्णव प्रिंसिपल बहुत ऊपर है। और कुछ? प्रो जी, पानी पीने के बाद हाथ क्यों धोना चाहिए? पानी में हाथ क्यों, हाथ झूठा हो जाता है? नहीं मतलब कई अगर बार हम ग्लास से मुंह को टच करके पीते हैं, वो हाथ झूठा माना जाता है, उससे आप कोई भी सेवा का कार्य नहीं कर सकते। और जो हम जब के समय जो वो बोतल से पी लेते हैं ऊपर से पीने को ये नहीं मानते हैं। अच्छा, ऊपर से पीने में हाथ झूठा नहीं होता। हाँ, ये झूठा सोचे का विचार तो मतलब के मतलब क्या कहते हैं, डेवलप सोसाइटीज में होता है। मैंने देखा कॉलेज में, वो कैंटीन में 3 लड़के समोसे खरीदे, समोसे के 3 कॉर्नर होते हैं, तो एक कॉर्नर से एक खा रहा, दूसरे से दूसरा, तीसरे तीसरा। कोई तो जानवर ऐसे खाते हैं। झूठा सुच्चे का जो विचार होता है, ये डेवलप सोसाइटीज में होता है, ये डिग्रेडेड सोसाइटीज में नहीं होता है। शुद्धि अशुद्धि का विचार। और धीरे धीरे जैसे जैसे ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स को हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सिद्धांतों में और मतलब परिपक्वता आती जाती है। जैसे हम लोग की जो लाइफ स्टाइल पहले थी और अभी की बहुत अंतर है, और अभी जो है और आज से 10 साल के बाद जो होगी बहुत अंतर होगा। आप समझ रहे हैं? ये लाभ है डिवोटी बनने का। तो डिवोटी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ही आप सीखने को मिलेगा। बाहर की सोसाइटी में तो कुछ भी ये सब कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। नहाना धोना, खाना कैसे खाना है, हाथ कैसे धोना है, झूठा क्या है सुच्चा क्या है। और जैसे मान लीजिए नींद सोने के बाद में जहाँ पे हम सोते हैं उसको तुरंत साफ करते हैं, ये कोई सिखाया है आज तक? ये केवल इस्कॉन में आके हम लोग सीखे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो बहुत सारे जर्म्स, सोना मतलब मृत्यु के समान, आप 6 घंटे के लिए मर गए, 6 घंटे बहुत सारे जर्म्स उस जगह को घेर चुके हैं। वो तामसिक तमोगुण होता है। तो तमोगुण और सतोगुण का जो कॉन्सेप्ट है तब व्यक्ति समझेगा जब थोड़ा, मान लो ऑलरेडी जैसे माने जिसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी है उस पर इंक गिर जाए तो क्या पता चलेगा? तो ये जो व्यक्ति बहुत एनग्रॉस्ड है मोड्स में, उसको ये सटल पॉइंट समझ नहीं आएंगे कि शुद्धि अशुद्धि, सूची असुचि, तमोगुण सतोगुण, कुछ समझ नहीं आएगा उसको। तो ऑलरेडी ग्रॉस तमोगुण में। अब जिसने माने सफेद कलर के कपड़े कुर्ता पहना हुआ है, उसमें छोटा सा भी इंक का दाग लग जाए, कैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो फील कर पाएगा। तो जिसकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर होती है ना, तो वो ये छोटे छोटे सेटल पॉइंट्स को अप्रिशिएट कर पाता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस बहुत प्योर है। तो थोड़ा भी इम्प्योरिटी है उसको वो जज कर लेता है। हम लोग की हालत क्या है, हम लोग इतने काले कपड़े पहने हुए हैं कि उसमें आप पूरा इंक की बाल्टी गिरा दो तो भी पता नहीं चलेगा कि क्या है। आप समझ रहे हैं? तो जो उन्नत कॉन्शियसनेस का लक्षण है, जो व्यक्ति उन्नत कॉन्शियसनेस में होता है ना, वो व्यक्ति देख पाता है इन सटल पॉइंट्स को, तो बिल्कुल उसको सटीक सटीक को देख पाता है। उदाहरण मैं देता हूँ, एक सन्यासी का स्टोरी मैंने सुना था। इस्कॉन के सन्यासी, तो वो एक किसी गृहस्थ घर में प्रसाद के लिए उनको इनवाइट किया गया था। तो गए, एग्जैक्टली किसका स्टोरी है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने स्टोरी सुनी है। तो जब वो गए तो उनके लिए उन्होंने फ्राइड राइस बनाया था। तो उन्होंने फ्राइड राइस बनाया था, तो सन्यासी महादेव बोले कि मुझे बोले कि मैं फ्राइड राइस नहीं लेता हूँ, नॉर्मल राइस होगा। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी फिर कुक कर लिया, कराया, कुकर में चढ़ाया, जो भी किया। लेकिन इतना जल्दी में थे कि कुकर में 2 सीटी आई, निकाल लिया, बिना ऑफर किए वो उनको सन्यासी को दे दिया, या वो कहीं पड़ोसी के घर से लेकर के आए, जो भी है। तो सन्यासी ने वो खा करके बता दिया कि इज इट नॉट ऑफर्ड। तो उन्होंने बता दिया, खा कर टेस्ट करके बता दिया दिस इज नॉट ऑफर्ड। अब हम लोग को, अब हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जानते, लेकिन हमको फिर भी प्रसाद में और नॉन प्रसाद में हम ऐसा सच अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको फिर भी प्रसाद का टेस्ट एक अलग लगता है कि नहीं लगता है? अभी आप लोग घर में हैं, घर का खाना और मंदिर का खाना, कुछ अंतर लगता है? जी जी। क्या अंतर लगता है? तो वैसे ही बनता है
क्या कुकिंग स्टाइल में अंतर है? नहीं, ऑफरिंग और नॉन ऑफरिंग का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। और हम लोग ठीक है उतना डिटेल में अंतर नहीं पता लगा पाते, लेकिन जो लोग कॉन्शियसनेस जिनकी बहुत एलिवेटेड है वो लोग तुरंत देख लेते, चेक कर लेते क्या है। तो क्यों ऐसा? जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत एलिवेटेड है वो सभी छोटे छोटे सटल पॉइंट्स को नोट कर पाते हैं। ये तब हम अनुभव करेंगे जब हम उस कॉन्शियस में पहुंच जाएंगे ना। आप 15 साल प्रैक्टिस करो भक्ति, आप अंतर कर पाओगे। आपको ये शुचि अशुचि, सुच्चा सुगंधा, साफ सुथरा, समोगुण सदोगुण सब समझ आने लग जाएगा। समझ रहे हैं? जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये जो 38 नंबर पॉइंट है, फुटस्टेप को लैप पे नहीं रखना चाहिए, मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है? do not place your footstep on your lap to eat food as a food stuff. इसका रीजन क्या हो सकता है ये पूछ रहे हैं आप? जी जी प्रभु जी। एक्चुअली कमर के नीचे वाले पोर्शन को इम्प्योर माना जाता है, कमर के ऊपर वाले पोर्शन को प्योर माना जाता है। राइट साइड को प्योर माना जाता है, लेफ्ट साइड को इम्प्योर माना जाता है। इसलिए कोई भी फूड स्टफ कमर के नीचे वाले पोर्शन से टच नहीं किया जाना चाहिए और लेफ्ट से टच नहीं किया जाना चाहिए। अब समझ रहे हैं? That is considered impure. Left portion is used for doing impure task, मतलब हम क्लीनिंग करते हैं। आपको पता होगा जो लोग लेफ्टी होते हैं, कुछ दिन पहले रसान को क्लास लेते वो बता रहे थे इस पॉइंट को, जो लोग लेफ्टी होते हैं वो लोग खाना भी लेफ्ट हैंड से खाते हैं और क्लीनिंग भी लेफ्ट हैंड से करते हैं। समझ रहे हैं? वो लोग क्लीनिंग भी लेफ्ट हैंड से करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि दो एक ही तरह के हाथ से वो दोनों चीज कर रहे हैं, है ना? जबकि वैदिक कल्चर में इस तरह नहीं होता है। जो वर्शिपिंग हम करते हैं वो राइट हैंड में करते हैं, खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं वो राइट हैंड में करते हैं, और क्लीनिंग हम लेफ्ट हैंड से करते हैं। ये ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, बचपन में पता नहीं आप लोग के घर में होता था कि नहीं, नहीं छुओ, या पहले ही कल्चर हुआ करता था, आजकल तो कोई कल्चर नहीं रह गया है। ठीक है, हरे यहाँ पे लिखा है नेवर प्रेज योरसेल्फ, 36 नंबर। ये एक स्टोरी है। प्रेजिंग वनसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी सुसाइड। और क्या कहते, एक बार अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन और कर्ण का युद्ध के दौरान क्या हुआ कि मतलब अर्जुन और नहीं, कर्ण और शायद युधिष्ठिर के बीच में युद्ध हुआ, जो भी है, मैं एग्जैक्ट स्टोरी भूल गया हूँ। तो युद्ध के बाद कुछ कारण से जो युधिष्ठिर वो घायल हो गए, और वो घायल हो गए तो वो अर्जुन को बोल के तुम युद्ध करो। लेकिन अर्जुन को लगा कि युधिष्ठिर घायल हो गए, तो वो उनको देखने के लिए कैंप में वापस आ गया। तो जब वापस आ गया तो युधिष्ठिर बोलते तुम अर्जुन कर्ण को मार के आए हो? बोले नहीं, मैं तो आपको देखने के लिए आ गया। तो युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आया, तुमको तो मैंने बोला था उसको मार के आना, नहीं तो वापस नहीं आना, तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, और जाओ तुम अपना गांडी फेंक दो। तुम किसी काम के नहीं हो। इस तरह डांट दिए। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे कोई गांडीव धनुष उतारने के लिए बोलेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। अब तो क्या करे प्रतिज्ञा का। तो अर्जुन ने उठाया गांडीव धनुष और तीर कमान उठाया और युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। उस समय कृष्ण वहां पे थे। कृष्ण पहुंचे तो कृष्ण बोलते हैं क्या कर रहे हो? बोले मैंने प्रतिज्ञा ली थी केशव की, मैं इस तरीके से जो मुझे गांडीव धनुष उतारने के लिए बोलेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तब कृष्ण महाभारत में बात बोलते हैं कि दूसरे का वध करने का दूसरा तरीका होता है उसकी निंदा कर देना, उसका अपमान करना, क्योंकि सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। तब अर्जुन ने खूब युधिष्ठिर महाराज की अपमान करना शुरू किया कि आपके कारण महाभारत युद्ध हुआ, आपके कारण द्रौपदी का चीरहरण हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए, आपके कारण ये वो दाएं बाएं बहुत बोला। अब बहुत बोलने के बाद उसको पश्चाताप हो रहा है। तो अब बोलते केशव ठीक है, मैंने तो उनका वध कर दिया, लेकिन अब क्योंकि मैंने अपने भाई को इस तरह अपमान किया है
तो अब मेरे जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तब कृष्ण दूसरी युक्ति देते हैं कि सेल्फ प्रेजिंग इज कंपेयर्ड टू सुसाइडल। तब अर्जुन को बोले ठीक है तुम अपने को ऐसे मत मारो, तुम सेल्फ प्रेजिंग करो। सेल्फ प्रेजिंग कैसे करो? तो अब अर्जुन बोला मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति हो, शक्ति इस तरह बोल रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी सुसाइडल। तो सेल्फ प्रेजिंग नहीं की जानी चाहिए, ये है ना। कोई दूसरा प्रेज करता है तो माने आपके अंदर कुछ, अपने मुंह यूं मिट्ठू बनना दैट इज नॉट जेंटलमैन बिहेवियर। हम लोग कृष्णा कॉन्शियस बनने से पहले हम लोग का सबका यही माइंडसेट होता था कि हम लोग बस अपने आप को बूस्ट करते थे, है ना, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं मुझसे बड़ा कोई बड़ा नहीं है, सही बात है, मूर्ख, मुझसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है एक बार मोहम्मद अली से किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, सर यू वंस यू सेड आई एम द ग्रेटेस्ट, व्हाट अबाउट दैट स्टेटमेंट? तो मोहम्मद अली कहते, यस आई एम स्टिल द ग्रेटेस्ट, बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, नोबडी इज ग्रेटर देन गॉड और क्या पूछ रहे हैं शुभम? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक पॉइंट था, डोंट पुल द हेयर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि शिखा नहीं खींचना चाहिए, मतलब ऐसा तो है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है प्रभु जी? देखो हर चीज का लॉजिक नहीं मिल सकता, बाल नहीं तोड़ना चाहिए बाल बैठे बैठे बाल तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है, ये है इस तात्पर्य। जैसे नाखून नहीं, अभी स्कूल में क्या होता था, असेंबली में नाखून चेक होते थे, याद है आप लोग को? हाँ, जी और जो प्रभु जी। नाखून जिसके बड़े होंगे उसको लाइन से बाहर कर दिया जाएगा, तो उसको फिर आधा घंटा खड़े रहना पड़ेगा बाहर, है ना। तो उस समय बच्चे क्या करते थे, टीचर आ रही होती थी तो पहले दांत से चबा करके नाखूनों को ट्रिम कर देते थे है, किया आप लोगों ने ऐसा कभी किया है क्या? नहीं, पनिशमेंट जरूर लिया है प्रभु जी। अच्छा, नाखून ट्रिम नहीं किए। तो देखिए नाखून काटने के बाद नहाना चाहिए, ये सिद्धांत है क्लीननेस का। हाँ, और फ्रेश होने के बाद नहाना चाहिए, बाल काटने के बाद, शेविंग करने के बाद नहाना चाहिए। ये तो हम लोगों को भी सिखाया ही नहीं गया, इसका लॉजिक कुछ भी नहीं है, बस ये क्लीननेस के प्रिंसिपल्स हैं। फ्रेश होने का क्यों नहाना चाहिए? फ्रेश होने के बाद बॉडी पर तो धोना ही क्यों चाहिए, जरूरत क्या है? कपड़े साफ पहनना ही क्यों चाहिए? मत पहनो। हर चीज का लॉजिक क्या है बताओ? पहनो तो 25 दिन पुरानी जीन्स 25 दिन से लगातार पहनते हैं ना बच्चे। अब हम देखिए, ये शुचि शुचि अशुचि ये कल्चर के कारण पता चलती है। जैसे मान लीजिए आपको बचपन से सिखाया गया है कि सुबह ब्रश करना चाहिए, है ना, तो क्योंकि आपको सिखाया गया है इसलिए आपको लगता है कि जिस ब्रश नहीं किया तो वो फील होता है कि मैं फ्रेश फील नहीं हो रहा है। या नहाना सिखाया जाता है बचपन से, मम्मी सिखाती है नहीं? तो कल्चर में ये सारी चीजें आ जाती है, हर चीज का लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं है 2-4 दिन नहीं नहाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहा रहा, नहीं नहाता ना, कॉलेज में तो 2-2 4-4 दिन नहीं नहाता, हफ्ते हफ्ते भर में एक बार नहाता है सर्दी के मौसम में। तो हाँ प्रभु जी इसमें एक प्रश्न और है कि जैसे हमें मतलब दूसरे भक्तों की शिखा मतलब क्यों नहीं खींचनी चाहिए, मतलब पॉइंट बोलो कौन यदि सा? नहीं इसमें पॉइंट तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन जैसे होता है कि मतलब दूसरे डिवोटीज की हमें शिखा नहीं खींचनी चाहिए, मतलब उसे टच भी नहीं करना चाहिए। शिखा खींचने का काम गुरु का है, केवल गुरु का हक है किसी की शिखा खींचना। शिखा क्यों रखते हैं पहले पता होना चाहिए। शिखा क्यों रखते हैं? प्रभु जी, 2 रीजन मैंने सुना है। बोलो। एक तो पहला शिखा रखते हैं और उसमें वो जो नॉट भी बांधते हैं, ताकि जब गुरु हमको भवसागर से ऊपर उठाएंगे तो वो कहीं बाल से उठाएंगे, सिर से, तो वो छूट ना जाए करके शिखा में नॉट भी रहते हैं और उठाते हैं। और जब हम गलतियां करते हैं तो भी जब वो डांट लगाएंगे तो भी शिखा से पकड़ के खींचेंगे, और फिर भी वो नॉट रहेगा तो वो छूटेगा नहीं करके। यही रीजन है ना। शिखा एंटीना है हमारा, कैच करता है सिग्नल, स्पिरिचुअल सिग्नल। शिखा देखो, मायावादियों में शिखा नहीं होती है, जानते हो ना क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा खींचने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कोई गुरु क्या है, हम तो भगवान है, तो गुरु की जरूरत क्या है? एक दिन भगवान ही बन जाएगा वो आदमी, तो गुरु गुरु कौन लगता है? आप समझ रहे हैं भाई, वो आदमी एक दिन भगवान ही बन जाएगा, फिर गुरु गुरु की क्या जरूरत है? तो मायावादियों में शिखा का सिद्धांत नहीं है, वैष्णवों में शिखा स्ट्रिक्टली फॉलो रखी जाती है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि मैं गुरु। आप देखिए कृष्ण बलराम का फोटो, जब वो कृष्ण और सुदामा का फोटो, कृष्ण बलराम का फोटो जो गुरु के आश्रम में, सांदीपनि आश्रम, वो पेंटिंग देखा होगा आप लोगों ने, गंजे हैं और शिखा है। हाँ?
शिखा रखने का तात्पर्य है कि अभी हम गुरु के शरणागत शिष्य हैं, है ना, और गुरु का अधिकार है हमको खींच के हमको डांट लगा सकता है, खींच करके पिटाई कर सकता है, और भवसागर से तैरा के गुरु शिखा के माध्यम से पकड़ के ले जाएंगे और नॉट बांधते के हाथ से फिसल ना जाए। ये सब वैदिक प्रिंसिपल है एक्चुअली। शिखा होती है, देखा ब्राह्मणों की शिखा होती है, ये सिखाया जाता है बचपन से ही ब्राह्मणों के कल्चर में। ये सब वैदिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे मान लीजिए अब क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं, क्या रीजन, अब रीजन लॉजिक क्या दोगे इसमें? तो कुछ चीजें लॉजिक से प्रूव नहीं की जा सकती है, कई जगह पे लॉजिक आकर के खत्म हो जाता है। जैसे स्त्री मंगलसूत्र पहनती है, क्या लॉजिक है? सिंदूर डालती है, क्या लॉजिक है? एक बेंचमार्क, मतलब हर बस वो केवल बेंचमार्क नहीं है, एक्चुअली बेंचमार्क है वो, लेकिन बेंचमार्क से कई उठ करके है। हाँ, मैं आज एक शास्त्र, एक श्लोक में सुना, एक भागवत के श्लोक में बताया गया है, मति सती, मति मतलब इंटेलिजेंस, सती मतलब चेस्ट। तो बोले अभी तक हमारी जो मति है वो अनचेस्ट थी। अनचेस्ट मतलब असती, असती नारी जैसे कहीं भी मुंह मारती रहती है, किसी उससे कोई ठिकाना नहीं है। तो पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले हमारी जो मति थी वो अनचेस्ट थी, आपने अनुभव किया, कहीं भी जाती थी। लेकिन जब से कृष्ण से शादी हो गई है, मति की है, वो कृष्ण की छोड़ के कहीं नहीं जाती है। कैसा फील आ रहा है आप लोग को? शेल्टर्ड फील लगता है, सेटिस्फेक्शन लगता है, हैप्पीनेस फील होता है, ब्लिसफुल फील होता है? ये केवल इसलिए होता है क्योंकि हमें सती, अभी इंटेलिजेंस, अभी मति जो है सती हो गई है, शादी कर ली उसने कृष्ण के साथ। शादी करने के बाद कुछ प्रिंसिपल, शादीशुदा औरत के कुछ कुछ ये होने चाहिए, नहीं तो उसमें और वैश्या में क्या अंतर रह गया? शादीशुदा औरत है और वैश्या है, तो कुछ तो डेजिग्नेशन मार्क अलग अलग होना चाहिए ना। लेकिन आजकल क्या, आजकल मॉडर्न कल्चर में क्या है, कोई कोई मार्क यूज नहीं करते, कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, कुछ भी पहनो, कुछ भी चलो, फ्रीडम के नाम पर। हैप्पीनेस के लिए बहुत सटल प्रिंसिपल्स होते हैं। एक जो स्त्री सिंदूर लगाती है, वो क्या फील कर रही है कि आई एम शेल्टर्ड बाय माय हस्बैंड। वो फीलिंग उसको इतना बल देती है। छोटा बच्चा है, एक अनाथ बच्चा और एक सनाथ बच्चा है, वो एग्जाम्पल है। कुत्ता जो है, वो पट्टे वाला कुत्ता है, बिना पट्टे कुत्ता है, गली का कुत्ता है और पालतू कुत्ता है। दोनों कुत्ते की फीलिंग एक नहीं है। एक आवारा कुत्ता है, भौ भौ कर रहा है, लेकिन तुरंत म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे उसको। और जो पालतू कुत्ता है, उसके गले में बेल्ट डाला हुआ है, वो बेल्ट उसका बल है, वो फ्रीडम है उसकी, वो उसका बॉन्डेज नहीं है। क्योंकि नगर निगम वाले पकड़ के ले जाएंगे ना कुत्तों को, और चाइना में पकड़ेंगे, नागालैंड कोहिमा में पकड़ेंगे ना, तो उसका कीमा निकाल के खा जाएंगे। यस, पालतू कुत्ते कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। तो पालतू होना किसी का कितना फायदेमंद है, उसको लगता है संसार में दिखता है, देखो गली के कुत्ते गली के राजा हैं, घूम रहे मजे से, वाह आजादी, फ्रीडम। और जो पालतू कुत्ता है, मानो कल को पालतू कुत्ता बोले मेरे को भी फ्रीडम चाहिए, मुझे भी आजाद करो। आप समझ रहे हो? समझ आ रहा है? जी जी ब्रो जी। तो पालतू कुत्ता अगर मूवमेंट चलाए, है ना, डॉग्स लिबरेशन मूवमेंट, पालतू कुत्ते अगर ये मूवमेंट चलाए, डॉग्स लिबरेशन मूवमेंट, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बेवकूफ है। वो सोच रहा है कि मैं भाग जाऊंगा तो मैं लिबरेट हूं, मैं खुला हूं। अरे तेरे को खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, और म्युनिसिपैलिटी वाले से बचाएगा कौन? लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। तो आजकल स्त्रियां का हालत वैसी हो गई, लोगों की हालत ऐसी हो गई, हमको इंडिपेंडेंट बनना है। बच्चे इंडिपेंडेंट, हमें माता पिता से इंडिपेंडेंट बनना है। हाँ, स्कूल में हमें गुरु से, टीचर से इंडिपेंडेंट बनना है। कॉलेज में हमें इंडिपेंडेंट बनना है। विमेन्स लिबरेशन, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के अंदर नहीं रहना। अरे संरक्षण में रहने का जो सुख है वो बहुत महान है, और कृष्ण के संरक्षण में रहने का जो सुख है सबसे महान है। और लोग इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में मेटल में गिरे हैं। तो वही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे, बहुत एक स्टेटस पे मैंने बहुत लोगों के देखा है, एक टॉर्टाइस अपनी शेल से बाहर निकल आया, तो वहां लिखा होता है ये सोच रहा है कि मैं मुक्त हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। ये स्वतंत्र है, इसने अपने प्रोटेक्शन की शील्ड खो दी इंडिपेंडेंस के नाम पे। मूर्ख है एक नंबर का। तो उसी प्रकार से ये छोटे छोटे सिद्धांत है। जैसे हम लोग तिलक धारण कर रहे हैं, ये तिलक धारण करना ये उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह एक शादीशुदा स्त्री का सिंदूर धारण करना। ये उसके सरेंडर और उसके शेल्टर को दर्शाता है।
और ये भी दर्शाता है, जैसे पालतू कुत्ते का जो बेल्ट होता है वो दर्शाता है कि ये कुत्ता किसी का है, इसको हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाएंगे तो उसके मालिक हाथ तोड़ देगा हमारा। तो इस तरीके से तिलक और कंठी माला दिखाती है कि ये वैष्णव है, ये कृष्ण का दास है, इसको यमराज भी हाथ नहीं लगाते। भागवत में लिखा हुआ है कि जिसकी कंठी माला तिलक है, यमराज के दूत उसके पास नहीं पहुंचते। कैसे पहुंचेंगे? उनको ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस मिल गया, अजामिल को पकड़ने के समय कितनी पिटाई पड़ी थी, अब वो रिस्क नहीं लेते। हाँ, तो तात्पर्य यह है कहने का कि ये सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं। ये लॉजिक, इसका बहुत डेप्थ, डीप फिलोसफिकल लॉजिक है। कल्चर का, कल्चर साइंटिफिक होता है, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। मैंने राधानाथ माचे कुक से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने मुझे आंसर दिया था, बहुत अच्छा आंसर दिया है। जैसे मान लीजिए घर गृहस्थी में बचपन से तो आप देखते आ रहे होंगे, आपकी मम्मी करते होगी, मम्मी की सास करती होंगी, सास की सास करती होगी, उनकी सास करती होगी, तेल जब गर्म होता है उससे पहले राई डालते फिर जीरा डालते हैं, उल्टा कभी नहीं करते। ऐसा नहीं करते पहले राई डालें, पहले जीरा डालेंगे फिर राई, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत कल्चर में चला आ रहा है। अब किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन वास्तविक रीजन है। मस्टर्ड को, सरसों को, राई को फूटने में ज्यादा तापमान चाहिए और जीरे को कम। तो पहले तेल जब गर्म होता है तो उसमें राई डाल देते हैं, राई फट जाती है, उसके बाद में जब तेल थोड़ा सा टेम्परेचर, क्योंकि एब्जॉर्ब कर चुकी है राई, तो थोड़ा सा टेम्परेचर गिरता है जो तेल का, उसमें जीरा बेस्ट पकता है। अब ये पुश्तैनी मतलब हजारों सालों से कल्चर चला आ रहा है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन ये है। अब कोई बोले क्या फर्क पड़ता है पहले राई डालो कि जीरा डालो, वो दोनों तापमान नहीं है। जिसका टेस्ट का सटल ज्ञान है वो जानता है कि जीरा कितना पकना चाहिए और राई कितनी पकनी चाहिए। मुझे पता नहीं आप लोगों को फील होता है कि नहीं होता है। जैसे जैसे साउथ इंडिया से जो उपमा होता है, उपमा में राई डलता है, तो राई के प्रॉपर टाइम तक वो पकना चाहिए। अगर उससे पहले या उससे बाद में करेंगे जल जाएगा, और पहले करेंगे तो वो पूरा पके फूटेगा नहीं, और उसमें वो जो एरोमा और एक स्पेशल टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। जो जीरा राइस में जीरे का एक प्रॉपर ये होना चाहिए, प्रॉपर सही तक पकना चाहिए। उतना नहीं पका है अगर वो, तो वो ज्यादा पक गया तो भी वो टेस्ट नहीं देगा, कम रह गया तो भी टेस्ट नहीं देगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुक लोग क्या करते हैं, जीरा डाल के तुरंत कुछ डाल देते हैं, तो जीरा पकता नहीं है। जीरा है उसके अंदर लेकिन एरोमा नहीं आता। तो जिसको जो टेस्ट एक्सपर्ट होता है ना, उसको ये सटल टेस्ट की जानकारी होती है। तो ये सब छोटे छोटे सटल सटल इमोशंस होते हैं। सिंदूर लगाने के वाले के सटल इमोशंस हैं, तिलक लगाने वाले के सटल इमोशंस हैं। ये केवल जो लगाया है, जो डेली तिलक लगाता है, जिसने तिलक नहीं लगाएगा वो फील कर सकता है कि बिना तिलक के कैसा कैसा लग रहा है। वो खुद उसको अनईजी लगेगा। है अनुभव आप लोगों का? जो डेली तिलक लगाता है वो एक दिन ना लगाए, है ना? संबित, जो तुम डेली तिलक लगाते हो, जिसे नहीं लगाओ कैसा लगता है? हाँ? तो ये नहीं कि केवल एक माइंड का खेल है, ये इमोशनल ये है, नहीं, रियल में सटल हरि बोल जी। वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ तुम डेली तिलक लगाते हो, जिस दिन तिलक नहीं लगाओ कैसा लगता है? तिलक तो मेरा आदत थोड़ा हो गया। मानो किसी दिन नहीं लगाया कैसा लगता है? रौनक को कैसा लगता है? मतलब अजीब लगता है ब्रो, इनकम्प्लीट लगता मतलब है अब आदत हो गई ना सर पे वो एक मार्क रहने की। तो इनकम्प्लीट, हाँ, इनकम्प्लीट फीलिंग आती है। ये केवल ऐसा नहीं कि माइंड का ये है, ये वास्तव में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक इम्पोर्टेंट फीलिंग है। एक इम्पोर्टेंट फीलिंग है जो हमको एक बल देती है। तो मैं बता रहा हूँ ये सटल कॉन्सेप्ट वही समझ सकता है जिससे कॉन्शियसनेस एलिवेटेड है। सटल सटल पॉइंट्स वही समझ सकता है जिससे कॉन्शियसनेस एलिवेटेड है। बहुत लोगों को कॉन्शियसनेस से सारी चीजें समझ नहीं आती है। और क्या पूछ रहे थे? होप मैं एक्सप्लेन कर पाया। ये धोती कुर्ता पहनना, अभी धोती कुर्ता पहनने का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो धोती कुर्ता पहनना है में और जीन्स, टाइट जीन्स जो आपके गुप्तांगों को पूरा वैक्यूम क्या कहते हैं सिकुड़ देती है, दोनों में क्या सेम फीलिंग आएगी? मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं। धोती कुर्ता कोई पहनेगा तो धोती पहन के और जीन्स पहन के सेम फीलिंग आती है? बताइए। बिल्कुल नहीं ब्रो जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जानना चाहिए सबको। जैसे जीन्स हम पहनते हैं, जीन्स टाइट होती है,
टाइट होने से पसीना आता है, उसमें हवा नहीं जाती है। पसीना मतलब इम्प्योर, मतलब वो गंदा होता है, मतलब वो अनक्लीन माना गया है। पसीना आना मतलब अनक्लीन नहीं होता है ना, क्यों हम नहा लेते हैं कि पसीना आ रहा है, नहा लेना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत बने हैं वो क्लीनलीनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है इलिसिट सेक्स। जो व्यक्ति जितना अनक्लीन रहेगा उसकी इलिसिट सेक्स के प्रति प्रवृत्ति उतनी ज्यादा रहेगी, और जो व्यक्ति जितना क्लीन रहेगा उसकी इलिसिट सेक्स के प्रति प्रवृत्ति उतनी कम रहेगी। जो व्यक्ति गंदा रहता है, बिस्तर पड़े हुए सालों सालों दिनों दिन गंदे, है ना, और बदबू आ रही है, वो व्यक्ति ज्यादा वो इलिसिट सेक्स के प्रति, पोर्नोग्राफी के प्रति, मास्टरबेशन के प्रति उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जाती है। और जितना साफ सुथरा रहेगा, लूज कपड़े पहनेगा, नहाएगा, सफाई रखेगा, लाइटेड एनवायरनमेंट, एरोमेटिक एनवायरनमेंट में रहेगा, उतनी उसकी प्रवृत्ति कम होगी। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड अप है। तो अब जो व्यक्ति जीन्स पहनता है स्वाभाविक रूप से उसका पैशन ज्यादा होता है अनुभव आप सबका? जी ब्रो जी। कोई बोल ही नहीं रहा। जी ब्रो जी। बिल्कुल। जी ब्रो जी। ये सब इसलिए ड्रेस कोड, ये हाँ, ड्रेस कोड, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना एक 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 हेल्दी और एक बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है ना। बनना तो बहुत ऊपर की चीज हो गई, है ना। एक और चीज आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग काफी समय से अटेंड कर रहे हैं, आज बहुत कम लोग हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैं कुछ दिन पहले बीबीसी का एक ये देखा था, एक एक उनका डॉक्यूमेंट्री था या नहीं, मतलब एक उन्होंने न्यूज रिपोर्ट, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जो 3-4 मिनट की, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो उसमें मैटर ऑफ डिस्कशन था कि जो यूरिन पास करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए। अब ये तो देखिए कल्चर मतलब खत्म ही हो गया है भारत में, पीछे यंगस्टर्स में जो खत्म ही हो गया है, हमने तो बचपन से कभी नहीं देखा, हम तो इसको में देखें। यूरिन पास करने का सही स्टाइल है, हेल्दी स्टाइल है, बैठ करके करना चाहिए। हार्ड मैं तो नहीं जानता, आप में से कोई करता होगा, कोई है? जी ब्रो जी। कोई भी नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, लेकिन करना चाहिए। अब वो बता रहे हैं साफ साफ उसमें कि जो कोई व्यक्ति क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आगे वाला बोल रहे हैं कि मॉडर्न मेडिकल रिसर्च में ऐसा कोई रिसर्च नहीं, फिर कुछ पर्टिकुलर डिजीज के लिए वो लोग रिकमेंड करते हैं, ब्लैडर रिलेटेड डिजीज के लिए रिकमेंड करते हैं बैठ के करो। तो इसका अर्थ क्या है? सीधी सी बात है, दैट इज मोर हेल्दी। तो वैष्णव लाइफस्टाइल में ये, अभी वैष्णव लाइफस्टाइल में भी ओडिशा में बचा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप लोगों को। हमने उज्जैन में देखा कि उज्जैन में बंगाली डिवोटी ज्यादा है, तो ओडिशा बंगाल के कल्चर में आज भी है। आप दिल्ली जाएंगे, मैं कानपुर गया था, कानपुर मंदिर में मतलब वो बैठ के पास करने की व्यवस्था ही नहीं है ही नहीं, वो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता। दिल्ली में भी है ही नहीं। तो अभी क्या है, इन सब जगहों पे तो हाँ ये सब चीजें तो खत्म हो रही है। इस्कॉन के अंदर मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या इस्कॉन बोल जैसे रहे ब्रह्मचारियों सुने में भी 25% 30% लोग, यार अब तुमको मैं कहाँ से शुरू करूँ? ब्रो जी कौन सा टॉपिक पॉइंट काफी बोले? अजीब सा चल रहा है, पॉइंट इसको बोले? रिपीट कहाँ से करेंगे? ब्रो जी मायापुर कौन में कौन सा भी पॉइंट वॉशरूम में कोई भी पॉइंट नहीं है, ऑप्शन। पॉइंट आउट ऑफ पॉइंट चल रहा है। नहीं, वो बोला कौन सा पॉइंट बोले, उसके जो एक्सप्लेन करे तो बोलो। वो सुन लिया, लेकिन कौन सा पॉइंट किसके बारे में बोल रहे? अरे कोई पॉइंट नहीं है, ये आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। नहीं, मायापुर कौन में भी सा ऑप्शन रहते हैं। क्या माया ऑप्शन है? क्या बोले? मायापुर की गेस्ट हम हाउस लोग डिस्कस में। कर रहे हैं कि हाँ एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले क्लियर कर दो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संबित कि यूरिन कैसे पास करिए, खड़े होकर के बैठ के। हाँ बोलो, मायापुर गेस्ट हाउस क्या हो गया? ब्रो जी मैं इस बार गया था ना मायापुर गेस्ट हाउस में, जेंट्स टॉयलेट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। मतलब पहले तो मैं कभी देखा नहीं था, अभी मैं देखा तो मतलब हाँ बस मैं बता रहा हूँ, दिल्ली और कानपुर और बहुत जगह तो मैंने देखा नहीं है, मतलब जब तक मैंने देखा कई मंदिरों में अब नहीं रह गया वो। तो ये हम लोग के जैसे मतलब ठीक ठीक लोगों के लिए अभी मुसीबत बन रहा है। विद इन इस्कॉन का बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट है, मतलब ये। और दूसरी बात है, उड़ीसा में है, अगर साधु अगर ऐसे खड़े होकर के कोई रोड के साइड में यूरिन पास करे तो बहुत नेगेटिव इमेज जाएगी। यानी एटलीस्ट हमारे भक्तों को तो सीखना चाहिए कैसे बैठ कर करना है। ब्रो ये जी मतलब ये उस तो कोई, दिन ये वैष्णव प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लीननेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
और आइडियल एग्जांपल सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब वो अलग बात है, कोई ऑप्शन नहीं है आपको, नॉर्मल कोई यूरिनल यूज करना पड़ रहा है कहीं जाकर के, अब अल्टीमेट अलग अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी होता है ना, जाते हैं पेट्रोल पंप पे हमको जाना पड़ता है, ठीक है, अब वो एक बहुत रेयर केस में एडजस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज हमको हैबिट डालनी चाहिए, है ना, कैसे बैठ करके ये करें। इसमें कोई कोई मतलब ये नहीं है, मतलब कोई शर्म की बात नहीं है, ये सब 2-4 दिन लगता है अजीब सा, उसके बाद नॉर्मल लगने लगता है। बोलो रोशन, ए रौनक, नहीं प्रो जी, एक्चुअली कह रहे हो क्या? डाउट ये था कि अगर जैसे नॉर्थ में ये कल्चर खत्म हो रहा है, तो लेकिन उस दिन श्रीकांत प्रभु मुझे बोल रहे थे कि जो टेम्पल, मतलब समझ लीजिए यूरिन करने के बाद या वो पानी डालना कंपलसरी रहता है, तो खड़े होने के बाद तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप समझ लो इसका, आपको पता होना चाहिए मुसलमानों में बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है कि यूरिन पास करने के बाद वो लोग अपने ऑर्गन्स को धोते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो लोग। वैदिक कल्चर बिल्कुल एंडेंजर्ड है, मतलब ये क्या बताएं आपको। वास्तव में मुस्लिम लोग ज्यादा कल्चर फॉलो करते हैं, हिंदूज केवल बातें ज्यादा करते हैं, धर्म ध्वजी गधे कहीं के बनाएंगे मंदिर, भगवा फैलाएंगे, बस भगवा 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 कोई पहनने को तैयार नहीं है, और बस वो भगवा भगवा कपड़ा बांध करके सिर के ऊपर और चिल्ला चोट करेंगे, बस यही, और तंबाकू खाएंगे, थर्ड क्लास के आदमी सारे। ये बिल्कुल मतलब हम कोई सब नाम के धर्म ध्वजी, ये लिखा है असत्संग में, कई प्रकार के असत्संग होते हैं। जैसे असत्संग में नॉन डिवोटी असत्संग कहलाता है, मेटेरियलिस्टिक लोग या डेमीगॉड वर्शिपर इस असत्संग में आता है, स्त्री संगी संगी इस तरह के लोग असत्संग आते हैं। एक और असत्संग की डेफिनेशन धर्म ध्वजी, ये जितने हैं, मैं अभी नाम क्या लूं, धर्म ध्वजी है सारे, ये जितने धर्म के नाम पे, राम मंदिर, शिव मंदिर, गणेश जी, हनुमान जी, दिस दैट, सब धर्म ध्वजी, धर्म के नाम पे झंडा लेकर के चलते हैं कि धर्म परायण नहीं है। बहुत कम लोग धर्म परायण बचे हैं, ये लोग केवल बातें करने के हैं। हम ये सब असत्संग है, इन लोग का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लोग के संग करने से केवल हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जितने ये हिंदूवादी भगवावादी, कितने लोग बैठ करके पेशाब करते हैं, पूछो उनसे जरा। धर्म की तो बड़ी बड़ी बात करते हो, और पेशाब करने के बाद अपने अंगों को धोते हो, कौन है बताइए? और फ्रेश होने के बाद नहाते हैं, सारे चाय पीते थर्ड क्लास के आदमी ये लोग। बातें करते धर्म की। तो ये इस तरीके के धर्म ध्वजी जो प्रभुपाद ने करके दिखाया है वो यूनिक है, उसका कोई अनपैरेलल्ड है। तो एनीवे, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सीखना चाहिए, ट्रेनिंग का पार्ट है कि कैसे मतलब यूरिन पास करने के बाद में सफाई करनी चाहिए, और क्या कहते हैं, बैठ कर करना चाहिए। एक और पॉइंट बता के मैं खत्म करूंगा, टाइम हो गया है। जैसे ड्रेस कोड का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वैष्णव ड्रेस कोड का, या मिनिमम भी करना चाहिए, ये जो टाइट अंडरवेयर होती है ये सब यूज नहीं करना चाहिए। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन होता है कोपिन पहनना। मुझे पता नहीं कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं। शुभम, अभिषेक, हिमांशु, तुम लोग को समझ आ रहा है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? नए नए लोग जी सोचेंगे अरे प्रभु ये जी। क्या हो रहा है। कोपिन कोपिन क्या एक, होता है प्रभु जी, ये बता दीजिए। वेरी गुड यार, इसको अब मैं प्रभु क्या जी वो तो है, अभी रौनक इनके लिए अलग से काउंसलिंग करनी पड़ी कोपिन क्या होता है। एनीवे, कोपिन क्या होता है मैं बता दूं, 2 स्ट्रिप होते हैं कपड़ों के। कोपिन का अर्थ होता है हम लोग अंडरवेयर यूज नहीं करते हैं, है ना। उसके कई कारण होते हैं, एक तो वो बहुत महंगी होती है फालतू की, ठीक है, और ऊपर से वो सुबह से लेकर रात तक तो उसमें पसीना पसीना इकट्ठा हो जाता है और स्मेल आती है। अब क्या क्या बोलो आपको, क्या ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में क्या क्या हमको बोलना पड़ रहा है। एनीवे, चलने दो, रिकॉर्डिंग चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप उसको बदल नहीं सकते बार बार। और अब आप लोग की गंदगी की हालत देखिए जरा, आप लोग यूरिन पास करते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स को धोते नहीं है, फिर निश्चित रूप से कुछ मतलब ड्रॉप्स ऑफ यूरिन उसमें लगा रहता होगा, फिर वो अंडरवेयर उसमें से सकआउट हो जाता होगा पानी उसमें, और उसके बाद तुरंत वही पैंट पहन करके मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करते। कितना अनक्लीन है ये, यस और नो? मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीजें हैं, जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हम लोग जब क्या कहते हैं यूरिन पास करते हैं, कोई रोड पे खड़ा कर रहा है, वो छींटे पड़ रहे हैं उसके शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, हैं, और वो बेवकूफ आदमी बस जाके बस मंदिर भगवान के सामने हरे कृष्ण। क्यों?
ये इतना अनक्लीन, ये आपने देखा होगा मुस्लिम्स लोग का जो पजामा होता है वो थोड़ा सा टकने के ऊपर होता है, देखा आप लोगों ने, अनुभव किए? और वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जकीर नायक पूरा कोट पैंट पहनता है लेकिन उसका पैंट जो होता है वो टकने के ऊपर होता है। ओके, मतलब कैप्री से थोड़ा नीचे। कैप्री और पैंट का जो बीच का हो गया वो थोड़ा सा नीचे पहनता है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसको। हम लोग बातें केवल करते हैं लेकिन हम लोग ड्रेस कोड से कॉम्प्रोमाइज, हम लोग कहाँ नीचे करते हैं, हम लोग का जो वेस्ट मतलब ये लो वेस्ट। लो वेस्ट वो उधर से थोड़ा, उसको जनरेशन गैप कहते हैं, जो बीच में बचता है ना, पहले की पैंटें ऊपर होती थी और आज की पैंट के जो बीच का जो एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन 50 साल पहले की पैंट और अभी के पैंट का जो डिस्टेंस, जनरेशन गैप कहते हैं। जानते हैं इसको, नाप लीजिए कितना गैप आया आपको। जनरेशन गैप मुझे कैसे पता लगाएंगे, तो कितनी वेस्ट से मेरा पैंट नीचे गई है, उसको जनरेशन गैप कहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ वो लोग कैसे करते हैं, क्योंकि वो लोग सफाई रखते हैं, जब वो यूरिन पास करते हैं वो छींटे नहीं आने देते हैं, वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, उसके हाथ पैर धोते हैं। और हिंदू लोग मेरा बातें एक करते डाउट बड़ी था बड़ी। हाँ बोलो। प्रभु जी, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं, एक्चुअली में मुस्लिम्स मैंने भी देखा हुआ है, क्योंकि मैं पहले से मतलब अ, बचपन से जो है एक मुस्लिम बैकग्राउंड में ही बड़ा हुआ हूँ, मतलब है। हम्म। तो यदि भी वो लोग सब कुछ फॉलो करते तो प्रभु जी इनका मतलब मानसिकता इतना विकसित क्यों होता है फिर? देखो वो सब, हाँ, मतलब दैट इज क्वेश्चन ऑफ अदर कैटेगरी। अब हम लोग चाणक्य की नीति को फॉलो करें, अच्छे गुण कहीं से भी सीखने को मिले वो सीख लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, है ना। वो मुस्लिम लोग फिलोसफी क्या है, उनका क्या अंडरस्टैंडिंग, वो एक अलग ही चैप्टर हो गया। मैं कह रहा हूँ अच्छे गुण उनके अंदर कुछ है ना, हम क्यों उसको अप्रिशिएट ना करें। जी प्रभु जी। एटलीस्ट हम अच्छे प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। वो लोग अलग क्यों हैं, उनका माइंडसेट अलग क्यों है, ये तो एक फिर अलग ही टॉपिक है, क्यों ऐसे हैं वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द डिस्कशन हो गया। क्योंकि प्रभु जी हमको मतलब उनकी हर चीज अच्छी नहीं है। प्रभु जी वो मतलब लोग जैसे साफ सफाई से खाना खाते खाते क्या है वो क्वेश्चन मार्क है। है ना। जैसे प्रभु जी एनीवे मतलब जैसे मैं एक उदाहरण हमारे देता हूँ, यहाँ मुस्लिम जो खाना खाते हैं वो लोग वो मेक श्योर करते हैं कि वो मतलब उंगली के 3/4 हिस्सा तक खाने से टच होगा। और हिंदू खाता है तो आपने देखा होगा, खा खा के वो पूरा मतलब कंधे तक चाट जाएगा। देखा कभी साउथ इंडियंस को खाते हुए? ऐसे आवाज निकाल निकाल करके। एनीवे कल्चर है तो जो भी है, अदरवाइज मुस्लिम्स के अंदर कुछ कल्चर है, मैं बताना चाह रहा हूँ, दे आर अटैच टू देयर कल्चर। as far as Hindus are concerned, they only talk show, no nothing practical. तो anyway, मैं कोपिन बता रहा था क्या होता है। तो कोपिन क्या होता है, so we don't use मतलब underwears, we use कोपिन, that is 2 strip of cloth, और उसको इस तरीके से बांधा जाता है कि आपका जो है मतलब वो सही से कवर हो जाए, और सफिशिएंटली टाइट रहता है वो, ताकि वो कंफर्टेबल भी रहे और जेनिटल्स को मतलब सही तरीके से प्रोटेक्शन मिले। आप लोग को ध्यान होना चाहिए, अब मैं मतलब टेक्निकल बात कर रहा हूँ। एथलीट, एक्चुअली मेरे पिताजी एथलीट थे तो मेरे को उन्होंने बताया, एथलीट्स का एक तरीका होता है, द वे दे कवर देयर ऑर्गन्स, है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग भागते हैं तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए ऑर्गन्स में। देयर इज सिस्टमैटिक वे ऑफ अरेंजमेंट, उनके लिए स्पेशल तरह के अंडरगारमेंट्स आते हैं। तो कोपिन में वो बाय डिफॉल्ट वो फैसिलिटी है, वो इस तरीके से अरेंज होता है कि योर ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड, योर आर सेफ। दूसरा, कोपिन के 2-3 फायदे और हैं। जैसे मान लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉपर सीमेन स्टोरेज के लिए नॉर्मल बॉडी से लोअर टेम्परेचर होता है जेनिटल्स, ये एक साइंस है। क्योंकि जेनिटल्स अगर टेम्परेचर हाई होगा तो जेनिटल लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब ये सीमेन लिक्विडेट होगा, और लिक्विडेट होगा तो वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो इसलिए आपने अगर बचपन में 10वीं क्लास में पढ़ा हो तो अगर ऑर्गन का डिजाइन सच्चा भी था, देयर इज लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द होल बॉडी। अब आप जब गर्म ऐसे अंडरवेयर पहनते जो केवल पैक्ड रहता है तो नेचुरली उसका टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो सीमेन का विस्कोसिटी होगा और वो स्पेल आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन कोपिन में साथ क्या होता नमन, यू कैन चेंज इट एट एनी टाइम, दिन में 2 बार 3 बार चेंज करो तो सूख जाता है जल्दी। अंडरवेयर जैसा नहीं है कि कई दिनों, आपने देखा बारिश के दिनों में सूखता ही नहीं है, फिर गीला गीला पहनो कितना अजीब लगता है। anyway, और मोटे कपड़े का बना होता है, तो क्योंकि उसके अंदर कपड़ा होता है तो टेम्परेचर उसमें ज्यादा होता है। कोपिन में क्या होता है, प्रॉपर एरिएशन होता है। मैं तो कई बार एग्जांपल दिया, धोती मतलब नेचुरल एसी,
जीन्स कंपैरिजन में, तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट इज गुड, और रिलेटिवली फार चीप मैं उसको इंडियन नेशनल अंडरवेयर्स कहता हूँ। तो इट इज वेरी प्लस इट इज वेरी क्लीन। तो वैष्णव प्रिंसिपल्स हम लोग एनकरेज करते हैं डिवोटीज को कि उसको पहनना चाहिए। वो साफ सुथरा रहता है, वो खर्चा आपका बच गया। एक एक अंडे में आजकल 200-250 रुपए की 300 रुपए की आ रही है, बहुत अच्छी कंपनी के, तो मैं उससे महंगी, तो पैसा बचता है आपका, उतने में तो हमारी धोती आ जाती है। प्लस वो साफ रहता है और वो हेल्दी रहता है। हो सकता है एक आध दिन पहले पहनने में अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन 2 दिन में आदत हो जाती है अगर किसी को आदत तो। एक दिन हमारा एक डिवोटी दोस्त, मेरा बचपन का फ्रेंड था, तो वो डिवोटी हो गया, मतलब मैंने डिवोटी नहीं बनाया उसको, तो अलग से डिवोटी बन गया। तो मैं बहुत सालों के बाद उससे मिला, उसकी मम्मी और वो उसके पिताजी आए थे, तो वो कृष्ण वाहिनी में आ चुका था। अभी तो काफी सिंसियर हो गया, इनिशिएटेड है वो, और काफी सिंसियर डिवोटी है। तो तो मेरी उसकी मम्मी मेरे से पूछती, मैं है ना, एक दिन मेरे को पूछती है उसकी मम्मी, तुषार तुम भी कोपिन पहनते हो क्या? किसी ने उसको देख लिया होगा, उनकी मम्मी ने घर में टांगा हुआ है वो स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स। मैंने कहा आंटी बेबी। एनीवे, तो जो भी है, तो ये सब भक्तों के संग में रहते रहते हम सीख जाते हैं ना, कोई इसमें कोई नया नहीं है। और ये सब आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं हो गया, मुझे पता नहीं, समझ आ गया क्या नाम है अभिषेक? सिंपल, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये प्रभु जी लंगोट को इसलिए बोलते बेस में हैं रहना क्या? चाहिए था। अरे हाँ, तो तू खोदा पहाड़ निकली चुहिया, उसका ही मतलब उसका ही टेक्निकल वर्जन है, लेकिन उससे बेटर वर्जन है, लंगोट से बेटर वर्जन है वो। ठीक अच्छा, है, एनीवे नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है, अब उससे ज्यादा मैं क्या कभी बताऊं। मिलेंगे तो बताइएगा। ये धोती बांधने की ट्रेनिंग, कोपी बांधने की ट्रेनिंग, साड़ी बांधने की ट्रेनिंग, इस्कॉन में सब ट्रेनिंग अवेलेबल है, तुमसे चाहिए कूपिन बांधना बताओ। कैसे सिखाते हैं? हैं? कूपिन बांधना कैसे सिखाते हैं? कैसे सिखाते हैं हाँ, यार? अब मैं क्या बताऊं कैसे सिखाते हैं, आ जाना, हम सिखाना बता देंगे। ठीक है, तुमको आता नहीं है क्या? मतलब देखिए, मतलब मैंने देखा है, और एक बार तो मैं बस वैसे एक बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा, वो एक बार मतलब मैं इसमें एक्चुअली केवल कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है। मैं और अर्पित गुरु डिस्कस कर रहे थे ना, तो अर्पित गुरु ये बोल रहे थे हम समझ ही नहीं पाते हैं कैसे भक्त इतनी जल्दी कॉपिन भी पहनते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें वो भी नहीं पहन रहे थे, तो मैं भी सोचा नहीं फिर उसके बारे में। चलिए चलिए, ये सब बेस में आकर के, नहीं तो लोग सोचेंगे क्या शुभम अजीब वजह से डिस्कशन हो रहा है ना ये वेस्टर्न एटिकेट के प्रिंसिपल्स, मतलब हम मतलब बेसिक प्रिंसिपल चर्चा करें तो बहुत हाई लेवल प्रिंसिपल तो आराम से चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, बहुत देर हो गई, 8:20 हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये कन्वर्सेशन हमारा थोड़ा सा सब लोग को पता होना सुनना चाहिए था एक्चुअली, एटलीस्ट सबको। आप रौनक ये करके लिंक डाल देना, वी डिस्कस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, क्या क्या मेन पॉइंट्स हमारे डिस्कशन के, डाल देना हमने क्या क्या डिस्कस ग्रुप में डाल के, और लिंक को छोड़ देना। जी प्रभु जी। सबको पता होना चाहिए कि ये ना, कोई भी मतलब ये कोई ऐसा नहीं, कोई एक 2 वर्ड्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट, दोनों में बहुत अंतर होता है। कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट में क्या अंतर होता है जानते हैं? कॉन्फिडेंशियल का अर्थ होता है ये मतलब ये कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट में एक अंतर ही होता है। सीक्रेट सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल एक ऐसा सीक्रेट है कि जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ लव, मेक लव, तो दिस इज नॉट सीक्रेट, बट दैट डज नॉट मीन कि वो बीच रोड पे खड़े होकर के दे विल मेक लव, नो, दैट इज कॉन्फिडेंशियल। गुरु और डिसाइपल के बीच में बहुत सारे इंटीमेट डिस्कशंस होते हैं, that is not secret, that is open for everyone, but that is confidential, it cannot be discussed among everyone, that will be discussed personally. तो ये सब जो हमने टॉपिक डिस्कस किए, दे आर नॉट सीक्रेट टॉपिक्स, दे आर कॉन्फिडेंशियल। इसको हम ऐसे भागवत क्लास में मायापुर टीवी के ऊपर इसका वो चल रहा है लाइव टेलीकास्ट, और उसमें बता रहे हैं कि कोपिन कैसे बांधते हैं, तो दिस इज नॉट प्रॉपर, दैट इज, but this is important, it is confidential, not secret, therefore everyone should know. समझ रहे हैं दोनों वर्ड्स के अंदर अंतर? भक्ति इज नॉट सीक्रेट, भक्ति इज कॉन्फिडेंशियल, भक्ति इज देयर इन द वेदास, बट इट इज नॉट रिवील्ड टू एवरीवन बिकॉज इट इज कॉन्फिडेंशियल। ये वर्ड याद रखें, कॉन्फिडेंशियल वर्सेस सीक्रेट,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय